am Kanika here. I'll give context about DPSP. So what is DPSP? Unlike fundamental rights, going to full form, Directive Principle of State Policy. Unlike fundamental rights, the DPSP are non-justiciable, which means they are not enforceable by the courts for their violation. However, the Constitution itself declares that these principles are fundamental in the governments of the country, and it shall be duty of the state to apply these principles in making law. This may impose moral obligation on the state authorities for the application. इसका मतलब ये है कि अगर आप DPSP हम नॉन जस्टिसेबल कहते हैं, मतलब ये इन्फोर्स नहीं हो सकता कोर्ट से अगर वायलेशन हुआ है तो इसके अंदर कुछ वो आते क्या कहते हैं सेक्शंस. सो व्हाट आर्टिकल 36 फ्रॉम आर्टिकल 51 comes under DPSP of Indian Constitution. There are many under it. So, if we count DPSP under the preamble, what it says, according to preamble, it says that the preamble of the Constitution is called the key of the minds of the drafters of the Constitution. Obviously, we say that preamble is the key of the mind of drafters of the Constitution. Like, it is an important thing. It lays down the objective that our Constitution seeks to achieve. उसमें ये चीज़ें लिखी हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अचीव करने चाहिए. मैनी स्कॉलर्स बिलीव दैट DPSP इज द कर्नल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ लोगों को लगता है DPSP कर्नल है, बट नहीं, वो नहीं. ऐसा कुछ लोग कहते हैं. लाइक एवरी चीज़, हर चीज़ के एक प्रोस एंड कॉन्स लिस्ट होती है. तो कुछ लोग समझते हैं कि कुछ स्कॉलर्स समझते हैं कि कर्नल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए DPSP, पर कुछ लोग समझते नहीं होगा. तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ले डाउन द गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट and our reflection or overall objective laid down a preamble of constitution. ये DPSP होता है, हमें लाइन से समझ आ रहा है कि ये स्टेट पॉलिसी के लिए है. इसके एनफोर्सेबिलिटी कैसे होती. बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए थे जब इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रहे थे, पर ये क्वेश्चन नेगेटिव साइड पे चला गया था कि नहीं, ये एनफोर्स नहीं होना चाहिए. सो देन अगर हम देखें कि DPSP को मतलब कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, अगर हम डेप्थ में जाए तो ये आर कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड दिस DPSP फ्रॉम आइरिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील इन DPSP. इट लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी. 4 things suggested, concluded, make it DPSP. So articles are many, I told, but what it reflects that it is divided into 2 parts, justifiable and non-justifiable. So if we go in justifiable, it is positive, and non-justifiable, it is negative. And they are not because justifiable in India did not have sufficient financial resources. क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास sufficient financial resources नहीं है इंडिया के पास. Moreover, the backwardness and diversity are a hindrance in implementing these principles at that time. जो backwardness है और diversity है वो एक दरार बन के आ रही है DPSP के लिए. At the time of drafting of the constitution, जब constitution draft हो रहा था तो क्या हो रहा था, India was newly born independent state. India एक newly born independent state, नहीं independent हुई थी उस time. So and was struggling with the other issues. सो उस टाइम बहुत वो परेशान हो रही थी और चीज़ें भी थी, तो DPSP मुश्किल था उस टाइम. तो तब से फिर हुआ ही नहीं. अगर हम फंडामेंटल राइट से रिलेट करें DPSP को, क्योंकि ये दोनों ही आते हैं, तो कैसे होए. फंडामेंटल आर लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो एक लिमिटेशन है, बट एंड ऑपरेशन ऑन इंडिविजुअल. बट दूसरी तरफ अगर DPSP को देखा जाए तो वो गवर्नमेंट पे अचीव करती है सर्टेन थ्रू द एक्शंस. लाइक एंड तक वो उसके एक्शंस नोट करें. एनीथिंग obtained from DPSP cannot be violated either by the individual or by the state. कोई भी चीज़ DPSP होएगी वायलेट नहीं हो सकती इंडिविजुअल स्टेट की. लेकिन फंडामेंटल राइट स्ट्रिक्ट रेमेडीज होती है. हमने पढ़ी हैं फंडामेंटल राइट्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था. फंडामेंटल राइट्स के पास है राइट्स रेमेडीज सीख करने के लिए अगर कोई अगेंस्ट जाता है तो. A law against the DPSP cannot declare as void by the court, but it is not the case with fundamental rights. DPSP cannot let the laws by the court because it's void. But fundamental rights में ऐसा नहीं है, voidable नहीं है, valid है. So these were some things about DPSP.
तो अब हम देखेंगे कि हर सिटीजन के लिए कैसे क्यों इम्पोर्टेंट है DPSP। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ नॉन जस्टिफाइबल नेचर ऑफ DPSP a citizen should be aware of them. Article 37 describes these principles in the fundamental in the governance of the country. What is objective of DPSP? The social and economic condition of society so people live in good life. It is a basic objective. Knowledge of DPSP of a citizen to keep a check on the government. सबको DPSP नॉलेज होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट से चेक करें कि हाँ चीज़ें सही चल रही है नहीं। A citizen can use DPSP as a measure of performance of the government. DPSP यूज़ हो सकता है सिटीजन्स के पास से अगर उनको परफॉर्मेंस मेजर करनी है गवर्नमेंट की, एंड कैन आइडेंटिफाई द स्कोप वेयर इट लैक्स। वो देख सकता है कि कहाँ वो लैक कर रही है गवर्नमेंट। अ पर्सन शुड नो दिस प्रोविजन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सब इंसान को प्रोविजंस पता हो DPSP के, बिकॉज अल्टीमेटली दिस प्रोविजंस आर द यार्डस्टिक टू जज द लॉ एंड गवर्न्स देम। यही उनको गवर्न करते हैं, यही मेन थिंग है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट ऑल्सो कंसर्न द पावर ऑफ स्टेट टू मेक अ डॉक्ट्रिनल लॉ। The various judicial procurements had been settled, but now the balancing DPSP and fundamental rights, सारे डिस्प्यूट सेटल हो गए हैं, जुडिशल परफॉर्मेंस हो गई हैं और दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई है। और दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है फंडामेंटल राइट्स और DPSP। सो हेयर वी कम go like little conclusion. So what will conclusion here? What do you think? I said about in-depth definition. I said about the different words. I said about the article. I said where it came from. I said where it went through. Why is important for the citizens of India? How they check the performance of the government. How it is important for the government. But if we come to a conclusion, what will be? I'll tell you. And it is not the final conclusion. It's just point of view that keeping the mind of आर्ग्यूमेंट्स देख हमने ऊपर जितने भी पढ़े हैं अभी, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एम होना चाहिए कि नॉन जुडिशियल राइट्स क्रिएट हों और वो DPSP के अंदर इन्फोर्सेबल हों। और ये जो असेंबली है ये इन्फोर्स ना करे डायरेक्टली, बिकॉज दे विल फियर दैट इट केम टू डेट ओवर टाइम। डेट बढ़ जाएगी अगर इसी चीज़ का डर रहेगा उन्हें कि डेट बढ़ गई है, तो इसलिए उस DPSP के। और दूसरा प्रोविजन है कि जो एनफोर्स थ्रू वेरियस लेजिस्लेशन, जो प्रोविजंस हुए लीगलाइज हुए हैं स्टेट से, वो नॉट एनफोर्सेबल, दे आर नॉट एनफोर्सेबल, दे आर डिटेक्टेबल रिलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड। वो डिटेबल हैं, वो एक कॉन्वर्सेशन बन गई है, तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होएगी। सो हम एक करंट पोजीशन में है डायरेक्टिव्स के, जो बैलेंस्ड है, वो डिज़ायरेबल है, ये धीरे धीरे हो रहा है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू गुड वन आफ्टर सम टाइम अकॉर्डिंग टू हाउ द गवर्नमेंट प्लेस, हाउ देयर परफॉर्मेंस, एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन सिटीजन हाउ दे रिएक्ट्स। Thank you. I hope you understood a little bit of DPSP. It is a long topic, but I covered the mostly ones. Thank you so much.